you're tuned into our special coverage, our rolling coverage here on CNN News 18. It is verdict day for Bihar and it's a resounding mandate for the NDA. The BJP emerging as the single largest party. You're watching this broadcast with me, Poonam Burde. It is the NDA's crossing its 200-seat mark, with that crossing its 2010 tally as well. The opposition is way behind, bagging less than 30 seats. The Congress is barely on the map of Bihar. Celebrations are underway at the offices of both the BJP and the JDU in Patna. The BJP leads with over 90 seats. JDU is at 84. BJP is the single largest party in Bihar with 92 seats. The LJP, Chirag Paswan and his party, bargained for more seats and they have delivered, and how? On the opposition side, it's complete chaos. The RJD, in its second worst performance in Bihar, has only 22 seats on the leaderboard, the left at 3. Tejashwi Yadav himself is trailing. Personally, for him, it is much more of a loss. His party is losing. Tejashwi Yadav is losing as well. What could be a bigger setback for the Mahagathbandhan? But we are already seeing the kind of reasons that they are putting out. Vote chori for one, SIR for another. But here are the key takeaways that we want to take you through as far as this election, this mandate in Bihar goes. It's the Modi factor that remains the BJP's mantra for winning seats. All of the rallies, all of the constituencies where the Prime Minister rallied and campaigned, there was very high voter turnout that was seen in all of those, and all of those seats pretty much have been bagged by the BJP candidates there. Nari Shakti, the kind of schemes that were announced by Nitish Kumar, by the NDA for women, that seems to have propelled the NDA to this historic victory. Both the BJP and the JDU have not only increased their seat share tally, but also their vote share tally. There is a notable difference in the BJP's vote share from last time around and a significant jump for the JDU. What is interesting is that non-Yadav votes have moved en masse to the NDA, and that's really showing as far as the tally that you see on your screens, 207 seats for the NDA. Chirag Paswan has consolidated Dalit votes for the NDA. His exit, not being with the NDA back in 2020, did hurt the NDA. This time around, with him and Upendra Kushwaha in the fray, in the fold of the NDA, that clearly was a booster for the NDA. The Congress seat share has gone down by 2/3 in this particular election. Seat share is still something that they can talk about as far as votes are concerned, as far as seats are concerned. That's an abysmal story for the Congress party. The RJD vote share is pretty much about the same from the last election, but their seats have halved in number. The vote chori allegation is being once again made by the Congress this time around. We've seen Congress leaders, one after another, both on social media and offline, talk about how this is vote chori, another election stolen by the BJP via the Election Commission. The SIR was another impact that is being blamed for. But clearly, that's not something that has resonated. That objection that the opposition had for all of these issues, that's not something that has resonated with the public on ground. Prashant Kishore, there was much hype about him and the Jan Swaraj party. Clearly, it was all just hype on social media, on online platforms, because he has failed miserably in his poll debut. A debut duck, so to say. It's the alliance arithmetic that seems to have worked in Bihar. Caste arithmetic is something that we talk about as far as Bihar elections go. But this time around, it looks like the fact that the NDA got its alliance arithmetic much better, sorted much faster than the Mahagathbandhan, seems to have worked in its favor. In fact, the BJP is now holding a press conference after this resounding mandate that Bihar has handed them. Let's cut across. नतीजा बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है। मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है। और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास युवा
अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 का किया, इसलिए वोट नहीं मिले। लेकिन पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये जनता के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया। ये हमने यहाँ जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि बिहार में चुनाव है तो हिंसा है, 60-65 लोगों की हत्या है, बूथ कैप्चरिंग है, फिर रीपोल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन ऐसे जीतेंगे ये तो बिल्कुल ये लोगों का प्यार है। और मुझे तो अपने लिए भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतनी नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगी ये सब, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोगों का प्यार जो मैंने ऑन ग्राउंड देखा। और मैं इससे पहले सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कंज्यूमर रही हूँ, और सोशल मीडिया पे जो पेड नेगेटिव पीआर करवाते हैं लोग, तो हम लोग भ्रम होता है ना हम लोग को भी कि अरे इतना किसी का विरोध हो रहा है। लेकिन जब ऑन ग्राउंड में गई, लोगों से मिली, तो जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के लिए जो मैंने प्यार देखा सबके नजर में, सबकी बातों से, तो मैं ये अपनी जो जीत है, तो ये कहीं ना कहीं मैं डेडिकेट करना चाहूंगी एनडीए की जो जीत है। ये अपने जो दोनों वरिष्ठ नेता है जिनके लिए हम लोग को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मुझे वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये उन्होंने कमाया है जनता का विश्वास। तो बिल्कुल ये तो मालूम ही था कि हम लोग जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता, सभी भाइयों बहनों और मतदाताओं का हृदय से आभार, जिन्होंने जंगल राज पर भरोसा नहीं जताया, जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए मतदान किए, और बिहार के विकास पर जिन्होंने मतदान किया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र को बिहार के लोगों ने अपनाया। नीतीश बाबू को भी काफी समर्थन मिला है, बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के वोट दिया है। नित्यानंद राय जी,
बिल्कुल बिहार में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ कर वोट की है, मतदान की है और यह साबित हुआ है कि बिहार की हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेकर एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाने में बहुत सहयोग की है। उनको हृदय से आभार। 160 का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री जी के अन्य 3 स्तंभ, एक तो महिला है ही, गरीब, युवा और किसान, सभी उनके विकसित भारत के स्तंभों ने सब मिलकर प्रचंड बहुमत एनडीए को दिलाई है। भरोसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो गरीबों के मसीहा है, विकास के भगीरथ है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री है, उन पर भरोसा, एनडीए के सभी साथियों पर भरोसा बिहार की जनता दिखाई। 160 का अनुमान था, लक्ष्य था। नित्यानंद राय जी, अंतिम प्रश्न 200 टच करने वाले हैं, ये तो अप्रत्याशित है। नित्यानंद राय जी, एक अंतिम प्रश्न, थोड़ा सा नहीं, अंतिम प्रश्न आपसे। 160 का लक्ष्य था एनडीए का, 200 टच करने वाले हैं, इसके लिए आप बिहार वासियों के लिए क्या वादे करेंगे? हाँ, बिहार वासियों के साथ जो भी वादा एनडीए की है, हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, सब वादा हम सब मिलकर पूरा करेंगे। पांडव दल